Good evening and welcome to this very special edition of Trending Tonight, broadcasting live from Western UP on the campaign trail. Remember, a poll-bound state, Western Uttar Pradesh, is where the bulk of the energy is being concentrated, not just by the BJP but also by Akhilesh Yadav as well as his old friend, trusted ally, but a brand new partnership. What does it really entail? You have on one hand the Prime Minister who's not just concentrating on West UP but the whole state. He was in Gorakhpur today and in a function which was a government function, he launched a political offensive. He said, beware of the red topi. The Samajwadis wear a red topi. He said, beware of the red topis because all they want is a red car, a lal batti. And there is a red alert around the red topi. And immediately there was a retort from Akhilesh Yadav who said that the only VIP culture is in the BJP, and talk about cars, they run over jeeps, over farmers. All that tutu meme is going on, but who will be able to decisively win the mandate in Uttar Pradesh? We have spoken exclusively to this brand new version of an old alliance between the Samajwadi Party and the Rashtriya Lok Dal. Both the chiefs, the national presidents, Jayant Chaudhary as well as Akhilesh Yadav, in an exclusive conversation which will play out in just a short moment. Also on the show, we want to get you the possibility of the farmers' agitation, the longest agitation in this country in recent times, getting over. The government has sent a proposal agreeing to some of the demands of the farmers. They have some counter demands. They're waiting for the government to respond. Will the agitation end is the big question, and what will the government say? Is this finally a round of dialogue between the farmers and the government? All right, before we talk about the farmers, let's play out this exclusive interview with Akhilesh and Jayant Chaudhary from Meerut. Hello and welcome to this special presentation from Western UP where Akhilesh and Jayant Chaudhary's Grand Alliance rally has just gotten over, and this is the motorcade which is now leaving. This was a massive gathering, so many people that almost in fact on many occasions we had a situation where the crowd was going out of control, but what a massive number of people who have gathered here for this announcement of the Grand Alliance. In fact, even women atop the rooftops there on the terrace of their house watching and in attendance to see what exactly is happening. But the big question is, can they do it? Can this alliance magic work, or the alliance arithmetic work for the SP and the RLD? Or will the BJP be able to trump them yet again as they did in 2014, 2017 and 2019? Let's find out. मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, इस बार उम्मीद क्यों जग रही है आपको? प्रदेश के किसान, नौजवान और जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उत्तर प्रदेश में, आज हर पैरामीटर में उत्तर प्रदेश पीछे जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, और जिस तरीके से ठोको राज ने किसान से लेकर के नौजवानों को अपमानित किया है, उत्तर प्रदेश में हर आदमी आज असुरक्षित महसूस कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरीके से ध्वस्त सरकार दिखाई दे रही है, जहां पर सांसद कूटे गए हों, विधायक गांव घर में न घुस पाए हों, इनके मंत्री तक भी अपमानित हुए हैं। तो जनता की जो नाराजगी है, किसान जिस तरीके से संकट में गया है, नौजवान की नौकरी छीनी गई, आज तक कोई भी नौकरी निकली होगी तो सबसे पहले उसका पेपर लीक हुआ होगा, पेपर लीक से बच गया होगा तो परीक्षा कैंसिल हो गई होगी, और अभी भी सरकार जिन भर्तियों को निकाली थी आज भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। यही नाराजगी की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जैन जी, आपको क्यों लगता है कि इस बार बदलाव होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? क्योंकि एक गठबंधन इससे पहले भी आप कर चुके हैं, ये अभी फिर कर रहे हैं, और किसान पर जो वो था कानून वो भी वापस हो गया है। तब आपको क्यों उम्मीद है कि राजनीतिक रूप से यहाँ पर लाभ पहुंच सकता है इस गठबंधन से? किसानों के साथ जो व्यवहार सरकार ने किया है लगातार एक साल से, लखीमपुर में जिस तरह किसानों को कुचला गया, उसके दोषी लोग अभी भी सरकार में शामिल हैं और कानून वापस ले लिए हों, लेकिन आंदोलनकारी ये जानते हैं कि ये उनकी जीत है, ये लड़ाई उन्होंने लड़ी। वही लोग जब ये कानून आए थे वो कहते थे कानून किसानों के हित के हैं,
अब मोदी जी ने वापस ले लिए तो कहते हैं इससे किसानों को फायदा होगा, बहुत अच्छा निर्णय है। चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप दोनों कि सीट शेयरिंग के बारे में तो अभी तक कोई बात हुई नहीं है। ये नहीं पता है कि आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे, आप कितने क्या पता हमारा आपस में तय हो। अच्छा, तय है 403 पे लड़ेंगे, 403। देखिए ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हम दोनों की बातचीत हो चुकी है, दोनों दलों में बहुत सी सहमति है कि जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई ऐसी बात बड़ी नहीं है। आपको लगता है 14, 17 और 19 में, खास तौर से 17 और 19 में आपने बड़े दलों से गठबंधन किया था, तो इस बार जो आप हर जगह जा करके समीकरण देते हुए छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, ये कारगर सिद्ध हो सकता है? देखिए पहले जो गठबंधन हुए उसमें इस तरह के बदलाव का उत्साह नहीं था और किसान इतना नाराज सरकार से नहीं था, किसान को उम्मीद बाकी थी। लेकिन जिस तरीके से 3 कानून आए, धरना दिया किसानों ने, हर बार उन्हें अपमानित होना पड़ा। अगर वो ट्रॉली लेकर के निकलना चाहते थे तो वो अपमानित हुए, पुलिस ने झूठे मुकदमे लगाए। 700 के लगभग किसानों की जान जा चुकी है, शहीद हो चुके हैं। ये बड़े सवाल हैं जो पहले नहीं थे। नौजवानों को भी उम्मीद थी कि शायद डबल इंजन की सरकार उनके भविष्य के बारे में सोचेगी, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश का 4.5 साल के कार्यकाल में जहां रोजगार के अवसर बढ़ने थे, वहीं बेरोजगारी बड़े पैमाने पे बढ़ी है और परीक्षाएं कभी लीक पेपर की वजह से कैंसिल हो गई या परीक्षाएं किसी वजह से कैंसिल कर दी गई, जो अभी भी नौजवान के भविष्य। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ आप दोनों से, अब जैसे कि आप देख रहे हैं नई बयानबाजी आ रही है बीजेपी से, वो कभी मथुरा के मंदिर की बात कर रहे हैं, कभी पलायन की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र आज आपने अपनी स्पीच में भी किया। इस पर आप दोनों क्या करेंगे? पहले मैं आपसे शुरू करता हूं। ये कोई मुद्दा नहीं है, इन मुद्दों का जनता में कोई सारोकार नहीं है। जनता इनसे आज सवाल जवाब कर रही है। मथुरा का जिक्र जो है वो आपको क्यों लगता है किया गया? मथुरा के लोग बहुत टॉलरेंट हैं, लिबरल हैं। कृष्ण जी ग्लोबल आइकॉन रहे, सब धर्म के लोग कृष्ण जी को मानते हैं, उनके भक्त हैं। अब आप दोबारा मंदिर के नाम पे लोगों को भटकाने का काम करोगे तो जनता आपका इलाज करेगी। जनता देख रही है इसको। बिल्कुल, आप देखिए कोई मथुरा का आदमी नहीं निकल रहा, वो शांति चाहते हैं लोग। आपका क्या कहना? एक पलायन वाले मुद्दे पर एक बात तो जनता समझ गई है, जो आपस में पैदा करे खाई वो समझ लो भाजपाई। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है भाषा और खराब होगी और बड़े पैमाने पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जनता बहुत समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत पे राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी दोनों को लड़ा करके, गुस्सा पैदा करके राजनीति और वोट। आपको लगता है पलायन का जिक्र और मथुरा का जिक्र चुनाव में हित देखने के लिए है? देखिए पलायन का मुद्दा अगर होता तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद उत्तराखंड से यहाँ पर आए हैं। भारत से न जाने कितने उद्योगपति भारत छोड़ करके कुछ कानूनी तरीके से चले गए, कुछ पैसा लेकर के चले गए। पलायन सवाल नहीं था। 4.5 साल तक सरकार क्या कर रही थी? पलायन की जो पहली सूची जारी की गई थी वो नकली थी, झूठी थी। इसलिए सवाल पलायन का नहीं है, सवाल यह है कि यहाँ से उद्योग कारखाने न पलायन कर जाएं। उद्योग कारखाने कैसे आए, नौजवानों को भविष्य कैसे नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ, जिनको आप बार बार आज अपनी स्पीच में कह रहे थे कि बाबा जो है वो गोरखपुर में घंटी बजाएं, तो आपको लगता है इसका एक चुनावी फायदा बीजेपी उठा सकती है कि देखो बाबा की बेइज्जती कर रहे हैं, हिंदुओं की बेइज्जती कर रहे हैं? बाबा कोई हिंदू प्राइड के प्रतीक नहीं है, वे मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा था 70 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। आज पूरे देश में होर्डिंग लगा रहे, कह रहे 4.5 लाख नौकरी दी, तो खुद मान रहे हैं। तो इन मोर्चों पे जब सरकार फेल होती नजर आ रही है तो दूसरे मुद्दे उठाना चाहते हैं। आपके नारों पर भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा था, एक नारा चलता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसके अंदर बैठा गुंडा। पूरे देश ने वो जीप देखी जिस जीप में गृह राज्य मंत्री के बेटे बैठे थे, उनके सहयोगी साथी बैठे थे। सरकार ये बताए कि आखिरकार वो जीप में बैठने वाले गुंडे अपराधी थे कि नहीं थे, जिन्होंने किसानों को कुचल करके मार दिया। ये ध्यान हटाने के लिए कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बताए सूची जारी क्यों नहीं कर रही है कि वो जो उत्तर प्रदेश में माफिया उनकी सूची जारी करे, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी अपनी सूची जारी करें कि उन पे कितने मुकदमे थे जो उन्होंने मुकदमे वापस लिए। प्रधानमंत्री और भी जितने उनके मंत्री हैं वो बनारस जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शो हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना? देखिए शो तो इस बात का होता कि किसानों के गन्ने का भुगतान हो जाता,
जो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, आज कमाई आधी हो गई है और महंगाई दुगनी, तो किसान कैसे खुशहाल होगा। और न केवल किसान के सामने संकट है, लगातार बैंकों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, बैंकें डूब रही हैं, बैंकें बिक रही हैं। इनके ऊपर आरोप ये था कि ये जुमले वाली पार्टी है, लेकिन इधर लग रहा है कि बेच रहे हैं, बेचू सरकार है जो सरकारी संपत्ति बेच दे, लोगों को ये कहे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, वो एयरपोर्ट बेच रहे हो, बंदरगाह बेच रहे हो, बीएसएनएल बिक गया हो, आपकी सरकारी संपत्ति बिक रही हो, तो क्या उम्मीद करोगे उनसे। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपको लगता है जनता को मना पाएंगे इस गठबंधन के माध्यम से? क्योंकि आपने नारा देखा होगा, वो जब भी शो करते हैं 12 मंत्री 18 मंत्री, बहुत बड़ा सा एक शो होता है। आपको लगता है जनता उससे प्रभावित हो जाएगी? एक बुलबुला है और जब फटता है तो पता नहीं लगता, देर नहीं लगती। जनता ने बनाया था, जनता के साथ इन्होंने धोखा दिया, जनता आज हमारे साथ। जनता को हमें मनाने की जरूरत नहीं, हम निरंतर जनता के साथ सड़क पर रहे, हमने किसान पंचायतें करी, हर घटना पे सबसे पहले हम लोग वहां जाते थे उनके दर्द को उनके आंसू को पहुंचने के लिए। मनाना तो उनको है और जनता मानने वाली नहीं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, वो प्रधानमंत्री से मिले, उनकी एक मीटिंग हुई, उन्होंने मथुरा वाली बात कही, आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है वहाँ? ये डिप्टी सीएम बहुत गलत समय पे बुलाए गए हैं या मिलने गए हैं। इन्हें तब मिलने जाना चाहिए था जब इनकी नाम की तख्ती मुख्यमंत्री ने उखाड़ कर फेंक दी थी। इन्हें तब मिलने जाना चाहिए था जब ये स्टूल पर बैठाए गए थे। अब मिलने जाने से कोई लाभ तो है नहीं, अब तो समय खत्म हो गया, जनता ने सब देख लिया है। और इनकी बनाई हुई सड़क या इनकी सरकार की बनाई हुई सड़क में अभी तक तो परंपरा ये थी कि नारियल सड़क पे मारिए नारियल टूटे, लेकिन इन्होंने नई परंपरा पैदा की है कि उद्घाटन सड़क का तब माना जाएगा जब नारियल मारोगे सड़क पर, नारियल न टूटे, सड़क टूट जाए। तो ये नई परंपराएं। जाते जाते आखिरी सवाल, देखिए बीजेपी कहती है अब की 350 पार, अब की इतना पार उतना पार, आपकी क्या है, आपका कैलकुलेशन क्या है? देखिए, मैंने पहले दिन का और आज भी कह रहा हूं, मैं जो नाराजगी है, जो गुस्सा जनता के अंदर है, किसान नौजवानों के अंदर, व्यापारियों के अंदर, और जिस तरीके से कोविड की मिसमैनेजमेंट देखा, हो सकता है 400 सीटें भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार जाए। अगर खदेड़ा का नारा वहां दिया गया है तो पश्चिम में आते आते भारतीय जनता पार्टी का सूरज भी डूबने का काम होगा। क्या मैं, अगर आप लोग जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की ओर देख रहा हूं, पहले आपसे जानना। मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना कोई इच्छा। हम चाहते सरकार बने और सरकार होगी नौजवानों की, किसानों की। देखिए, ये लोकतंत्र में नई एक्सरसाइज है, नई तरह की परंपरा बनी है जहां पर कई डिप्टी सीएम बनाए गए। तेलंगाना में देखिए क्या हुआ है कि कितने डिप्टी सीएम हैं। तो ये हम लोगों पर छोड़ दो कि भविष्य में हम दोनों को क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। All right, so that's what you heard Akhilesh and Jayant say about their future prospects. Can they trump Yogi and Modi, that double engine sarkar? Well, there was a function in Gorakhpur where the Prime Minister also spoke. It was a sarkari function, a government function, but he made a mention of Akhilesh Yadav and his red topi. Let's listen into what the Prime Minister said. लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। All right, let's now talk about the other story that we are tracking.
there was a proposal from the government to end the farm stir, where the government proposed certain other steps which would appeal to the farmers. The farmers have met today but have not decided to end their protests. At this moment, I am joined in by BKU टिकैत फैक्शन लीडर राकेश टिकैत। टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मेरा सबसे पहला सवाल, अब सरकार ने और भी बहुत सारी मांगे मानी है आपकी, लेकिन अभी क्या दिक्कत है उनकी? इस प्रपोजल पर आपको क्या दिक्कत है, क्या एतराज है? वो दे दिया, जो प्रपोजल पर दिक्कत है उनको दे दिया, उसका जवाब भी दे देंगे। मुकदमों पे दिक्कत नहीं तो है। अगर आप दर्शकों को बताना चाहें कि ऐसा क्या है, क्योंकि एमएसपी सरकार पे ने ये प्रस्ताव दिया कि नहीं, एमएसपी की कमिटी जो है उसमें क्या दिक्कत है टिकैत साहब? पहले के बाद ठीक एमएसपी पर गारंटी कानून बनेगा और उसके बाद में कमेटी बनेगी। अब वो कमेटी की बात करें, कौन सी कमेटी, कहाँ कमेटी बनेगी, कौन उसमें लोग रहेंगे, वो भी बता दो जरा, उसको बना लो कमेटी को, वो भी तय हो जाए। कमेटी बनेगी, कौन कौन लोग उसमें रहेंगे, वो तय हो जाए। नहीं टिकैत साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब सरकार का ये कहना है कि एमएसपी पे, देखिए कोई भी कानून तुरंत तो आता नहीं है। आपका ये कहना है कि पहले कानून बना दो, उसके बाद सरकार कह रही है एक कमेटी बना देते हैं, उसमें चर्चा करते हैं। आपके अपने सदस्य भी आप बता सकते हैं। हाँ तो बता दें ना, कमेटी बना तो लो ना, बनाओ, कौन कौन बनाओगे कमेटी में? हाँ बनाओ कमेटी। और अब तक बनाई क्यों नहीं कमेटी भाई? तो बहुत दिन हो लिए, कमेटी बननी चाहिए, बनाओ कमेटी। नहीं तो उस कमेटी में कौन हो? क्योंकि एक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये आ रहा है कि बात सही दिशा में चल पड़ी है और कमेटी में कुछ ऐसे लोग हों, वैसे लोग ना हो जिन्होंने पहले कृषि कानून बनाए थे, बाकी समिति के पक्ष में है वो। आप अपने आप को कहां पाते हैं? नहीं, मैं कह रहा कि बनाओ लो ना, हम अभी तो भाई कौन लोग हैं तो एक बार देख लेना, हम भी कि सरकार की तरफ से कौन कौन आते हैं, जो उनसे उसी पाठशाला में पढ़ के आ रहे हो। नहीं तो क्या तब तक आंदोलन जारी रहेगा? अरे आंदोलन जारी रहने की तो बात जब आओगी कि जब कोई सरकार बात करेगी आंदोलन जारी कब तक रहेगा। हमें तो किसी सरकार ने अभी कहा कि आंदोलन खत्म कर लो, और किसी को कहा हो तो बताओ भाई, वो आदमी बताओ किसने कहा है। एक और चीज सरकार की तरफ से यह है कि जो मामले हुए दर्ज किसानों के खिलाफ, वो भी सरकार वापस लेने को तैयार है, लेकिन पहले आंदोलन खत्म हो जाए। इस पर आपका क्या कहना है? ये बैठ के ही तो बातचीत होती होगी, या हवा में ही बात हो जा भाई? ये बैठ कर तो बात होती होगी ना सारी, किसी से के साथ में। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल बिना ही बैठक के बातचीत हो जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है, आपको लगता है कि अब ये जो प्रस्ताव सरकार ने चिट्ठी के माध्यम से दिया है और जिसपे आप चर्चा कर रहे हैं, तो एक माहौल इस तरीके का बन रहा है कि कम से कम चर्चा का दौर शुरू हो, कि आपके और सरकार के बीच में बातचीत का दौर शुरू हो, जो कि कितने महीने से बंद है? देखो, जो सवाल कमती बत्ती होते रहते हैं, जब ऑन टेबल आदमी बैठता है तो बहुत सी चीजें वे लिखत पढ़त में नहीं आती, वे मौखिक उसमें आ जाती है। और एक दूसरा जब आमने सामने बैठता है तो लिहाज शर्म होती है कि भाई ये आदमी बैठा है, इसने बात ये कही। हर चीज लिखत पढ़त में भी नहीं आती कि हर चीज लिख के ही दो। वो तो कोई चीज कह दिया तो वो मानना जाता है कि ये हो जाती है, क्योंकि बहुत सी चीजें लिखत में नहीं आती, वो लिखी नहीं जाती। जब तक आमने सामने नहीं बैठेगी, जब तक इसका समाधान नहीं निकले, सरकार बैठ के बातचीत अब नजदीक आ रही है। जब तक सरकार मौखिक कुछ बोल रही थी तब आपका ये कहना था कि नहीं भाई लिखित में दो, हम भरोसा कैसे करें। अब आप कह रहे हैं कि हर चीज लिखित में नहीं होती है, कुछ मौखिक भी होती है। मैं बता तो दिया ना भाई, आप बैठ के कर लो, बहुत सी चीजें नहीं होती लिखत पढ़त में भी। ठीक है, हम तो पिछले 35 साल से मूवमेंट ही तो करते हैं, बहुत सी चीजें लिखित में नहीं होगी। कोई चीज कोर्ट में होगी तो सरकार कैसे लिख कर दे देगी कि कोर्ट से हम वापसी करवा देंगे? वो एक उसका लीगल प्रोसेसिंग होगा। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो है और वो आपस की अंडरस्टैंडिंग सा होती है।
वो जब होगी जब ऑन टेबल बैठ जाएंगी, क्योंकि वे चीज और खत्म आप नहीं आनी बातचीत के चाहिए, लिए वे तैयार कागजों में हैं, आप निकल चाहते हैं आएगी। कि सरकार बातचीत की पहल करे। हमने पांच आदमी और वो बात करने को तैयार है। अगर उत्तराखंड में कमेटी दे देगी, वह चाहेगी कि बिहार में कमेटी दे तो बिहार में दे देगी। ठीक है, बहुत ये टिकैत साहब आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है, बट वी हैव गॉट अ सेंस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। थैंक यू वेरी मच। मनजिंदर सिंह सिरसा, लीडर ऑफ द बीजेपी, वेरी रिसेंटली गॉन टू द बीजेपी। मिस्टर सिरसा, thank you very much for joining us. My first question to you is, you heard what farm leaders are saying. So obviously there is no consensus as far as farm leaders are concerned on ending their protest is concerned. You shifted to the BJP. You said that once the farm laws are taken back, I will have nothing against the BJP. Now the government wants to be, wants to strike some sort of a reconciliation with the farmers. Do you think that the steps being taken now should be enough for the farmers to end their agitation? See, what I was listening to Rakesh Taketji also, he has one point, he said कि the meaning of his words were कि अगर हम आमने सामने बैठेंगे तो it is not that we want everything to be written from government side. हम भी कुछ आंखों की शर्म होती है. We will also, if they're going to address our issues, it is not that we want everything in written. So what I got sense from him. And secondly, I think that today what I have heard from him, it was very clear that they're going to end the strike very soon. And very importantly, मैं ये जरूर सभी किसान भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूँ, with my folded hands, एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबे संघर्ष जो है किसानों की जिसमें जीत हुई, उस मसले को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित करते हुए तीनों कानून जो है वापस लिए हैं। सरकार ने एक पहल और आगे की और यह भी कहा कि जो मैं आज सुन रहा हूं कि केस भी वापस लेंगे, जो हमारी भी मांग रही है। सरकार ने यह भी कहा कि जो एमएसपी के ऊपर है वो भी यूनिलैटरल कोई फैसला ना हो, एक तरफा ना हो, इसलिए 5 लोगों की कमेटी के नाम आए। मुझे लगता है कि अब जो विषय छोटे मोटे रह गए वो केवल इतने रह गए, जैसे उन्होंने टकेत जी ने कहा कि शायद वो भी चाहते होंगे कि सामने बैठकर बातचीत अगर हो जाए तो कम से कम उनकी भी भावना और हम अपनी भावना व्यक्त कर पाए। तो मुझे लगता नहीं कि एक आधे दिन के अंदर you're saying, Mr. Sirsa, that apart from written proposals from the government, there is an urgent need where the farm leaders as well as government representatives restart their conversation. नहीं, नकेश टकेजी मैं सुन रहा था जो उन्होंने कहा, मैं वो बता रहा हूँ। His meaning was very clear that they are. नहीं, आप क्या मानते हैं? अब तो आप बीजेपी में हैं। मेरा एक सीधा सवाल, आपको लगता है सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाना चाहिए? ये चिट्ठी लिखना, सिफारिश देना, प्रपोजल देना, ये एक बात हुई, बैठ के बात करना एक दूसरी बात है। नहीं, सरकार ने भी इस बात को देखा कि बैठकर मसले नहीं निपट पाए, क्योंकि आपस में बैठकर मसले नहीं निकले, तो ही सरकार ने पहलकदमी की और पहले तीनों कानून रद्द किए, फिर अभी केस वापस करने की बात पे शुरुआत दी और साथ में एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाने की बात की। तो मुझे लगता है कि अगर आपको बैठने की बात रहेगी तो केवल इतना है कि जब वो कमेटी बनेगी, when the committee is constituted, definitely those 5 people from the farm union will sit across the table with the government and decide about the MSP. Rest, I do not think that there is any situation. So very interesting, at least from a position where there was absolutely no conversation and no movement forward, we now have a situation where the government has budged and we can see that there is some movement. Now, it will be very interesting to see whether this will result in ending of the agitation and of course a consequence, whether there will be a political fallout of this decision that has been taken. We'll watch this space very, very closely as it develops. Thank you very much, Mr. Sirsa, for joining us. Short break at this moment, but all news and updates will continue right here on NDTV. Good night and goodbye.